سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 9.99 فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 275.66 فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 6.18 فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی قیمت 283.63 فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا ہے۔ اور امریکہ کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے سینیٹر جے ڈی وینس کو اپنا نائب صدارتی امیدوار بنانے کا اعلان کیا ہے۔ سینیٹر جے ڈی وینس کا تعلق ریاست اوہایو سے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان ریپبلکن پارٹی کے کنونشن میں کیا۔ اس سے پہلے سینیٹر مارکو روبیو اور گورنر ڈگ برگم کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ انہیں نائب صدارتی امیدوار نہیں چنا گیا۔ اور وفاقی حکومت نے قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف پر پابندی کی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا نے بتایا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ میں کیس دائر کرنے جا رہی ہے۔ حکومت نے سائفر کیس، فارن فنڈنگ اور 9 مئی کے حملوں کی وجہ سے پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے۔ ملک کے ساتھ بہت کھلواڑ ہو چکا، اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کیس موو کرے گی۔ تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان کے تحت آرٹیکل 17 ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کے حوالے سے اختیار دیتا ہے وفاقی حکومت کو، اور یہ سپریم کورٹ میں معاملہ بھیجا جائے گا۔ ان تمام تر چیزوں کو، فارن فنڈنگ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے، 9 مئی کے حملوں کو دیکھتے ہوئے، سائفر والی ایپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے اور امریکہ میں جو آپ نے ریزولوشن پاس کروایا اس کو دیکھتے ہوئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مری میں مسلسل تیسرے دن نواز شریف سے تیسری ملاقات کی ہے، جہاں انہیں بتایا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے حکومت نے آصف زرداری، اتحادی جماعت اور سینئر لیگی رہنماؤں کو اعتماد میں لیا ہے۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو تمام قانونی، آئینی اور سیاسی آپشن استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس عاشورہ کے بعد ہوگا۔ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی شیڈول سے قبل بلایا جائے گا۔ اور رہنما پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے تطارڑ کی پریس کانفرنس کو چھوٹا منہ بڑی بات قرار دے دیا ہے۔ کہا کہ پابندی لگانا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب نے کہا کہ پابندی کے فیصلے کی کھچڑی نواز، شہباز اور مریم نے بنائی۔ سابق صدر عارف الوی نے کہا کہ آج مشتاق یوسفی کی یاد آئی جو کہتے تھے کہ میاں تم باتیں آدمی جیسی کرتے ہو لیکن جذبات گھوڑوں جیسے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ حکومت کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے، اس لیے بکھلاہٹ میں پی ٹی آئی پر پابندی جیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں۔ صدر پی ٹی آئی سندھ حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا حکومتی فیصلہ مذاق ہے۔ فارم 47 والے پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی صیب بولے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد حکومت حواس باختہ ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا اقدام حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ قانون میں کسی جماعت پر پابندی کی گنجائش نہیں ہے۔ آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ بنا تو چل نہیں سکے گا۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر نے پابندی کی خبر پر رد عمل میں کہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے پاس نمبر زیادہ ہیں، حکومت کے خلاف عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان، سابق صدر عارف الوی اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آئین سے غداری کا مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ مقدمہ کیسے دائر ہوگا اور ماضی میں کس کس پر غداری کے مقدمات دائر ہوئے، جانتے ہیں اعزاز سید کی اس رپورٹ میں۔ سابق صدر عارف الوی، سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف دائر ہوگا غداری کا مقدمہ۔ آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق آئین کو توڑنے، اس کی خلاف ورزی کرنے یا اسے معطل کرنے والے کسی بھی شخص کے خلاف یہ مقدمہ وفاقی حکومت دائر کرتی ہے۔ یہ مقدمہ چلے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 اپریل 2023 کے اس فیصلے کی روشنی میں جس میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کی جانب سے 3 اپریل 2022 کو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی قرارداد مسترد کرنے کے عمل کو آئین سے انحراف قرار دیا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اسمبلی کو تحلیل کرنے اور صدر عارف الوی کی منظوری کے عمل کو بھی سپریم کورٹ نے آئین سے انحراف قرار دیا۔ قانون کے مطابق اب وفاقی سیکرٹری داخلہ غداری کے مقدمے کی سمری وفاقی کابینہ کو پیش کریں گے، جس کی منظوری کے بعد ایف آئی اے اس پر تحقیقات کا آغاز کرے گی۔ تحقیقات کے بعد چالان فائنل ہوگا اور پھر ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت کے لیے خصوصی عدالت قائم کی جائے گی۔ ماضی میں سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کی پاداش میں غداری کا مقدمہ چلا اور انہیں ان کی عدم موجودگی میں سزائے موت سنائی گئی۔ تاہم اس عدالت کی تشکیل کو ہی لاہور ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا۔
माजी में 60 की दहाई में अगरतला साजिश केस में शेख मुजीबुर रहमान पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया, मगर बाद में वो मुकदमा खत्म करना पड़ा। भुट्टो दौर में वली खान, खैर बख्श मरी, अताउल्लाह मैंगल, शेर मोहम्मद मरी, अफरासियाब खटक और दीगर पर हैदराबाद साजिश केस में गद्दारी का मुकदमा चलाया गया, मगर ज़ियाउल हक ने हुकूमत पर कब्जा करने के बाद ये मुकदमा खत्म किया। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया है। इजलास में एड हॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी क़य्यूम सदीकी से। जी क़य्यूम, बताइएगा जुडिशल कमीशन की तलब किए गए इजलास की क्या तफसील है और एड हॉक जजेस के लिए किन रिटायर्ड जजेस के नामों पर गौर होगा? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 19 जुलाई को तलब किया गया है और हमारे ज़ाया के मुताबिक जुडिशल कमीशन में एड हॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा और इन 4 नामों में उन नामों पर गौर होगा जैसा कि कानून के अंदर है कि उन जज साहिबान को एड हॉक जज मुकर्रर किया जा सकता है जिनकी रिटायरमेंट को 3 साल से कम का अर्सा गुजरा हो। तो इसमें जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजिफा ईसा ने जो जुडिशल कमीशन की मीटिंग तलब की है उसमें 4 नाम जो हैं उनको नामजद किया है, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखिल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम शामिल हैं। ज़ाया के मुताबिक 3 साल या इससे कम अरसे में रिटायर्ड जज को एड हॉक जज तैनात किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ये उस वक्त करती है जब सुप्रीम कोर्ट की 17 के 17 जजेस की स्ट्रेंथ पूरी हो जाए। तो जो जुडिशल कमीशन को ये नाम भिजवाए गए हैं उसके अंदर यही लिखा गया है कि रजिस्ट्रार की जानिब से जो अदाद शुमार मुकदमात के हवाले से पेश किए गए उसके बाद ये एक इंतहाई ज़रूरत है कि जितने मुकदमात दाखिल होते हैं उससे ज़्यादा मुकदमात के फैसले हों और इस बुनियाद पर क्योंकि बढ़ते चले जा रहे हैं मुकदमात तो ये लाजमी है कि एड हॉक जजेस का तकर्रुर किया जाए और इस पर जो है वो 19 जुलाई को अब इजलास बुलाया गया है और इजलास में जो है इन नामों के ऊपर गौर होगा। इन नामों पर गौर होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आपका। और लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई का कहना था कि किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज का नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है कि 9 मई वाक़यात पर आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। लाहौर पुलिस ने अडयाला जेल जाकर 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली थी, जिस पर उन्हें वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। जज खालिद अरशद ने केस की समाअत की। तफ्तीशी अफसरान ने बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की। बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए जज से मुकालमा करते हुए कहा कि किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज का नहीं कहा। 9 मई वाक़यात की आज़ादाना इंक्वायरी किसी ने नहीं करवाई। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि 9 मई वाक़यात पर आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। गुजरावाला में मुझ पर हमला हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से CCTV फुटेजेस भी गायब कर दी गई। वकलाए सफाई और प्रोसिक्यूशन के दलाइल के बाद अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज किया और बाद अज़ा 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। और वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है कि साइफर केस का दोबारा ट्रायल होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर की, जिसकी तमाम दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद हैं। वक्त आने पर काबीना और अवाम के सामने रखेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने 9 मई के केसेस में ताख़ीर के हवाले से कहा कि किसी वजह से हमारी अदलिया की रैंकिंग दुनिया में सबसे कम है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त के हवाले से तमाम इत्तेहादी जमातें हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में कानूनी सुकम मौजूद है, लीगल शॉर्टकमिंग्स हैं, उसमें आइन और कानून को पूरी तरह इंटरप्रेट ना किया गया है, ना सही तरीके से चीजों को देखा गया है। एक सियासी जमात को जो फायदा मिला है और ऐसा रिलीफ दिया गया है जो शायद उन्होंने मांगा भी नहीं था। हम समझते हैं कि ये एक नाइंसाफी हुई है जिसका तदारक जरूरी है। बात कोर्ट के सामने रखेंगे कि ये इतना रिलीफ मुमकिन नहीं था जितना दिया गया है। ये कहना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कि वो एक रियलिटी है, ऑनरेबल लॉर्डशिप्स के
पास कौन सा ऐसा पैमाना मौजूद है जिसके मुताबिक वो पॉलिटिकल पार्टीज को जांचते हैं कि कौन रियलिटी है कौन नहीं है? आप सुप्रीम कोर्ट को कैसे कहेंगे कि साइफर के जो मुकदमा है उसमें तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दे, जब उसका फैसला ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया? मेरा तो ख्याल इसका रीट्रायल होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने इलीगल मीन्स के थ्रू, जिसके थ्रू लॉबिस्ट फर्म हायर की, वो तमाम दस्तावेजात जो हैं, मैंने काफी 3-4 महीने लगा के उस पर काफी मेहनत की है, तो वो भी वक्त आने पे हम पब्लिक करेंगे, काबीना के सामने भी रखेंगे। साइफर और ये रेजोल्यूशन दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, इनमें से एक चीज गलत है, इनको मानना पड़ेगा। और ये तैयारी करके, होमवर्क करके, इस पे हमारी मुतअद्दिद लीगल मीटिंग्स हुई और उसके बाद हमने ये ऐलान आज किया। फैसला हो चुका है इन प्रिंसिपल, अब काबीना में जाएगा और काबीना से आगे जाना है, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर है। अब कैसे मुतमईन करेंगे? वीक प्रोसिक्यूशन, चार्जशीट मुतअद्दिद मुकदमात में नहीं हुई, लोगों को 1-1.5 साल गिरफ्तार रखा हुआ है, कुछ नहीं हुआ, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर लेंगे जब लोअर कोर्ट से कोई फैसला नहीं है? कुछ वजह है कि हमारी जुडिशरी लोएस्ट रैंकिंग है दुनिया के अंदर, और कुछ वजह है कि इन केसेस का पिछले 1.5-2 साल में फैसला नहीं हो सका। रिव्यू के हवाले से भी इत्तेहादी जमातें तमाम ऑन बोर्ड थी, तभी रिव्यू दायर किया गया है। तो इत्तेहादी जमातों को कोई किसी चीज पे इतराज नहीं है, दे आर ऑन बोर्ड। पीपल्स पार्टी मजबूती से खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला खड़ी रहेगी। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। नून लीग की जानिब से दायर दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हामिद रजा और इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चंद नकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल खामोश है। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? फैसला खामोश है। क्या ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने लिस्ट ही जमा नहीं करवाई? फैसला खामोश है। दरख्वास्त में कहा गया है कि आज़ाद उम्मीदवार ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका एक जीता हुआ उम्मीदवार असम्बली में मौजूद नहीं। क्या नशिस्तों को खाली छोड़ा जाए या इन जमातों में बांटा जाए जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया? सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नकात को सुना, लेकिन मुख्तसर फैसले में कई अहम नकात पर खामोशी है। फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया था और नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। आइन के मुताबिक अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान की हाकमियत आला या सालमियत के लिए मुज़र हो तो हुकूमत उस पर पाबंदी के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन को बरकरार रखे तो सियासी जमात तहलील हो जाएगी और इसके तमाम मुंतखब अरकान नाअहल करार पा जाएंगे। सियासी जमात पर पाबंदी के हवाले से पाकिस्तान का आइन और इलेक्शन एक्ट क्या कहता है, जानते हैं नौशीन यूसुफ। कोई सियासी जमात इस तरीके पर बनाई गई या कोई ऐसा अमल कर रही है जो पाकिस्तान की हकमियत आला या सालमियत के लिए मुज़र है, अगर वफाकी हुकूमत इस पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दे तो वो 15 दिन के अंदर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की पाबंद होगी। सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस पर फैसला हतमी होगा। ये है आइन की आर्टिकल 17 की ज़ेली शिक 2 जो अंजुमन साजी की आज़ादी से मुताल्लिक है। आर्टिकल 17 की ज़ेली शिक 3 कहती है कि हर सियासी जमात कानून के मुताबिक अपने माली ज़राए जाहिर करने की पाबंद होगी। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 210(1) के तहत सियासी जमात अपने अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की पाबंद है। इसके साथ सियासी जमात के सरबराह या इसके मजाज पार्टी ओहदेदार का बयान हल्फी होगा कि सियासी जमात को ममनुआ ज़राए से कोई फंड्स मौसूल नहीं हुए। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 212 सियासी जमात की तहलील से मुतालिक है, जिसके मुताबिक अगर वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस या दीगर ज़राए से मौसूल मालूमात से मुतमईन है कि सियासी जमात गैर मुल्की फंडेड है या ऐसे काम कर रही है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के खिलाफ है या दहशत गर्दी में मुलविस है, तो हुकूमत उस पर पाबंदी लगाने के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन बरकरार रखे तो सियासी जमात तहलील हो जाएगी। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 213 के मुताबिक पार्टी तहलील होने के बाद इसके पार्लियामेंट या सूबाई असेंबली या मकामी हुकूमत में अरकान बाकी मुद्दत के लिए नाअहल हो जाएंगे। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत के हालिया फैसले पर MQM पाकिस्तान ने फिलहाल मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है। ज़रा MQM पाकिस्तान का कहना है कि फैसले से कबल MQM पाकिस्तान को एतमाद में लिया गया, ना मुशावरत की गई। MQM पाकिस्तान के मुताबिक चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क हैं। ज़रा का कहना है कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के हवाले से हाल के फैसले पर MQM पाकिस्तान ने ना मुशावरत की गई, ना एतमाद में लिया गया। हुकूमती फैसले पर जल्द MQM कोर कमेटी के इजलास का इम्कान है जिसमें हुकूमती फैसले पर गौर किया जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि किसी पार्टी पर बाज़ोर शमशीर पाबंदी लगाना नाजायज़ है। कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने मुस्लिम लीग नून को मशवरा दिया कि ऐसे इक़दाम ना किए जाएं जिनसे नाम तारीख़ में ज़ालिमों के तौर पर याद रखा जाए। आप
तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हिमायत क्यों नहीं करते? पाबंदियों से पार्टी ख़त्म नहीं होती बल्कि उनसे लोगों की मोहब्बत बढ़ जाती है। इस हुकूमत को कोई तो समझाए, किसी मुशीर से तो मशवरा कर ले। वक्ती तौर पर किसी को दबा के अपनी यानी मिट्टी पलीद करना, ये कहाँ का यानी अकल है। लेकिन ये पाबंदी यानी बज़ोर शमशीर लगाना ये किसी तौर जायज़ नहीं है। ऐसे इक़दामात न किए जाए कि तारीख़ में उनको फिर बुरे नाम से याद किया जाए, ज़ालिमों के नाम से याद किया जाए, गैर सियासी लोगों के नाम से याद किया जाए। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 70 अरकान असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद PTI में दोबारा शामिल होने के लिए हल्फनामे जमा करवा दिए हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वापस PTI ज्वाइन कर ली। अली अमीन गंडापुर ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। अली अमीन गंडापुर ने इंतख़ाबात जीतने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। वज़ीर आला समेत 70 अरकान असम्बली ने हलफनामा पार्टी के पास जमा करवाया। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वापस PTI में शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह है कि PTI सियासी जमात है। मखसूस नशिस्तें PTI का हक था, PTI को मिल गया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 उन पर लागू होता है जिन्होंने आइन के मुताबिक इंतख़ाबात नहीं करवाए। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सनम जावेद के केस से डिस्चार्ज होने पर FIA ने अपील दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका की रुखसत के बायस समाअत ड्यूटी जज आमिर ज़िया ने की, जहां FIA प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी ऑफिसर ड्यूटी जज आमिर ज़िया के रूबरू पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि इंटरनेट एक बग़ैर बॉर्डर के मीडियम है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। साइबर क्राइम के पास सनम जावेद की जानिब से किए गए ट्वीट्स के तमाम सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान में ट्विटर का कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस मौजूद नहीं है। कानूनी चाराजोई के लिए अमेरिका नहीं जा सकते हैं। अदालत ने जिस्मानी रिमांड या जुडिशल करने की बजाय मुलज़मा को उसी दिन मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। सनम जावेद ने अपने 2 लाख फॉलोअर्स पर एक्स अकाउंट से एक वीडियो अपलोड की थी। वीडियो में एक इदारे के सरबराह को कत्ल करने की धमकी दी। अभी तक सनम जावेद ने अपने एक्स अकाउंट की तफसीलात FIA को मुहैया नहीं की हैं। सनम जावेद का वॉइस और वीडियो एनालिसिस करना है। FIA ने अपील ड्यूटी मजिस्ट्रेट मलिक इमरान के फैसले के खिलाफ दायर की। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका FIA की दायर अपील पर 18 जुलाई को समाअत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ सनम जावेद को ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। तहरीक इंसाफ ने नून लीग की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से बातचीत का इशारा दे दिया है। GO न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़िब खानज़दा के साथ में बात करते हुए PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ते के लिए तैयार हैं। हमारी फॉर्म 47 से मुतल्लिक शिकायत ज़्यादातर नून लीग और MQM से मुतल्लिक हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने कहा कि PTI एक सियासी जमात है और रहेगी। नज़रसानी दरख्वास्त भी उन्हीं जजों के सामने लगेगी और उसकी कबूलियत का इम्कान बहुत कम होता है। हुकूमत कन्विंस्ड है वो लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने में कामयाब हो जाएंगे। ये इन्होंने एक सियासी खुदकुशी की है, अपने पाँव पर इन्होंने एक कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मारा है। आपने इतना जोर लगाया और उसके बावजूद 13 में से 11 जजेस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, है और रहेगी। रिव्यू उन्हीं के पास लगेगी और रिव्यू का स्कोप फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड। जो कॉन्शियस फैसला हो उसको आप जो री हियरिंग में नहीं ले जा सकते। हुकूमत बनाने के लिए अलायंस, एक है हुकूमत गिराने के लिए अलायंस। जब नो कॉन्फिडेंस की कसर साहब बात करते हैं वो हो नहीं सकता पीपल्स पार्टी के बगैर, तो क्या उसके लिए बात करेंगे पीपल्स पार्टी से? बिल्कुल हो सकता है। देखें हमारा फॉर्म 47 की जितनी हमारे केसेस हैं वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हैं या MQM के खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो हमारा कोई फॉर्म 47 वाला सीन है ही नहीं। मुल्तान में है और कराची की भी एक सीट पर है। कराची की होगी या गिलानी साहब के होगा, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी खुदकुशी, सियासी खुदकुशी करने का सोच भी सकती है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो अपने आप को डबोएं इस मुस्लिम लीग नून की इस साजिश में शरीक होकर एस्टैब्लिशमेंट का अपने आप को गुमाश्ता जाहिर कर दें। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे। इसलिए अच्छा, बाकी रह गया ये कि अगर स्पेस बनती है उनके लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, तो वो इसी तरह बनती है कि मुस्लिम लीग नून से वो जान छुड़वाएं और उनकी बी टीम बनने की बजाय वो उनके खिलाफ बिल्कुल सामने आ जाए। और नौशहरा में टारगेट किलिंग के शिकार सहाफ़ी हसन ज़ेब के लिए खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पेशावर प्रेस क्लब की कॉल पर सहाफ़ियों ने पेशावर में मुजाहरा किया। कहा कि हुकूमत सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी, कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। DPO नौशहरा
اظہر خان کے مطابق اب تک کی تفتیش سے نہیں لگتا کہ صحافی حسن زیب کا قتل دہشت گردی ہے. جیو فینسنگ کرا رہے ہیں. CCTV ویڈیو میں نظر آنے والے ملزمان کی شناخت کے لیے نادرہ سے مدد لی جا رہی ہے. صحافی حسن زیب کو اتوار کے دن اکبر پورہ میں موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا. اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے حکومت کی طرف سے PTI پر پابندی کے فیصلے کو نو بال اور مایوسی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں حکومت کے ارادوں کا علم تھا. کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے PTI پر پابندی کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کی توہین ہے. ہمیں ان کے ارادوں کا پتہ تھا. یہ جو کہہ رہے ہیں آج موصوف صاحب کہہ رہے ہیں، پہلے تو ہم اس کو بڑا ہی لائٹلی اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ اپنی پارٹی والے بھی اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے، اور پہلے بھی انہوں نے بڑے ایسے نو بال کیے جو اپنی ہی پارٹی نے بعد میں ان کو ڈینائی کیا ہے کہ دس از ناٹ دا اسٹیٹمنٹ. یہ صرف اور صرف فارم 45 سے توجہ ہٹانے کے لیے، ریزرو سیٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں. مایوسی کی ان کی انتہا ہوئی، ان کو کوئی اور بن نہیں پڑا. یہ PTI کو ہرا نہیں سکتے. یہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کی کنٹمپٹ نہیں ہے، اس کی خلاف ورزی. میں سمجھتا ہوں اٹ از مور دین دیٹ. وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سارے آپشنز تو آن دا ٹیبل ہوتے ہیں اور وہ اپنے ایکسرسائز کرتے ہیں. ابھی فیصلہ پارٹی نے کوئی نہیں. یہاں آپ کو بتائیں کہ حکومت سندھ کے ترجمان اور میئر سکھر ارسلان اسلام شیخ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوریت پسند جماعت ہے. سیاسی جماعت پر پابندی کی کبھی حمایت نہیں کی، لیکن سیاسی جماعت کو بھی سیاسی جماعت کا طرز عمل اپنانے کی ضرورت ہے. جاری کردہ ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ مشاورت فیصلے سے پہلے کی جاتی ہے، فیصلہ لینے کے بعد مشاورت نہیں ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوریت پسند ڈیموکریٹک پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کی نہ حمایت کی نہ کرے گی، بشرط وہ پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے آئین و قانون کے دائرہ اختیار میں رہ کے کام کرے. وہ پولیٹیکل پارٹی ڈیموکریٹک نارمز اور پرنسپلز پر یقین رکھتی ہو. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کی، دہشت گرد تنظیموں کی ہمیشہ مخالفت کی اور ہمیشہ مخالفت کرتی رہے گی. ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں آج 8 محرم الحرام کے مرکزی جلوس برآمد ہوئے. کراچی میں 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس منسٹر پارک سے برآمد ہوا. شرکا روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے حسینیہ ایرانیہ کھارت در پہنچے. جلوس کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے. لاہور میں 8ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ دربار حسین سے برآمد ہوا، جو پام سٹریٹ امام بارگاہ بیت الرضا پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. جلوس کے راستے میں مختلف مقامات پر پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی گئیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 8 محرم الحرام کا جلوس جامع مرتضیٰ سے برآمد ہوا. پشاور میں 8 محرم کا جلوس امام بارگاہ نجف علی شاہ بازار سے برآمد ہوا. جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا.